Hello everybody, welcome to my English class. Let us discuss different greetings in English. So today's session is on spoken English for the beginners. Today we will study how to greet. তো আজকে আমরা আমাদের এই ক্লাসে ইংলিশ ক্লাসে আমরা কি পড়ব? স্পোকেন ইংলিশ ফর দ্য বিগিনার্স অ্যান্ড কোন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখানে এবং কোন বিষয়টা শিখব স্পোকেন ইংলিশে প্রথম স্টেপ কোনটা আমাদের গ্রিটিংস কি করে আমরা ग्रीट করব तो हम लोग एक स्पोकन इंग्लिश क्लास में आज सीखेंगे कैसे ग्रीट करना है तो एक दूसरे को किसी से जब मिलते हो कैसे ग्रीट करते हो আমরা যখন কারোর সাথে দেখা করি দেখা হয় সাক্ষাৎ হয় আমরা তাকে যে বাক্য ইউজ করি যে ওয়ার্ড ইউজ করি সেগুলো ইংলিশে আমরা কিভাবে ইউজ করব সেইগুলো আজকে শিখব গ্রিটিংস ফার্স্ট আমরা গ্রিটিংসের ফর্মাল গ্রিটিং কোনগুলো সেইগুলো প্রথম জানবো तो कौन सा पहला ग्रीटिंग्स है पहला ग्रीटिंग्स कौन सा सीखेंगे आज फर्स्ट फॉर्मल जो हम लोग फॉर्मली यूज़ करते हैं मीन्स ऑफिशियल यूज़ जिसके साथ हम हमारा दोस्ती नहीं है फ्रेंड नहीं है किसी से ऐसे फर्स्ट टाइम हम लोग जब मिलते हैं तब हम फॉर्मली पेश आते हैं तो আমরা যখন কারোর সাথে প্রথম দেখা হয় তাকে ভালো করে চিনি না কি সে আমার বন্ধু নয় সে আমার ক্লোজ রিলেটিভ নয় তো তখন আমরা খুব ফর্মালি অ্যাটিটিউডে তার সাথে আমরা ভাষা আদান প্রদান করি তো আজকে আমরা সেটা ইংলিশে শিখব সো আমাদের জেনারেল যে গ্রিটিংস হয় ফর্মাল আমরা ইউজ করে থাকি जो हम लोग डेली लाइफ में जो ग्रीटिंग्स फॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं वो है हेलो হ্যালো जो बहुत कमन है হ্যালো তোমরা জানো সবাই আমরা হ্যালো বলি প্রথমে ফোন তুলেই হোক বা সামনাসামনি বা কিছু ডিস্টেন্সে দাঁড়িয়ে আছে হ্যালো বলে প্রথম আমরা তাকে সম্বোধন মানে বলে তখন কথা বলতে শুরু করি जा किसी जिज्ञासा हो जाहि हो तो जिसके साथ बात करते हैं कोई नज़दीक है कि डिस्टेंस में है या फ़ोन पर है हम लोग पहले हेलो बोलते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं हाउ आर यू তুমি কেমন আছো तुम कैसे हो हाउ आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो তুমি এখন কি করছো सो हाउ इज एवरीथिंग सब কিছু কেমন চলছে ऐसे सब कुछ चल रहा है सब ठीक ठाक है मीन्स ऐसे हम लोग फॉर्माली पेश आते हैं আমরা প্রথম যার সাথে দেখা করি এইভাবেই আমরা প্রথম গ্রিট করি हाउ इज एवरीथिंग गोइंग कैसे सब कुछ चल रहा है তো সব কিছু কিভাবে চলছে সব কিছু কেমন আছে হাউ ইজ এভরিথিং হাউ অ্যান্ড সব কিছু কেমন চলছে তো এইভাবে আমরা বলি আমরা हाउ इज़ एवरीथिंग और हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग कैसे चल रहा है और कैसे है हाउ हैव यू बीन कीपिंग सो हाउ हैव यू बीन कीपिंग तो जो भी चीज़ हम लोग रखते हैं कैसे कर रहे हैं ये हम पूछते हैं किस तरह से तो কিভাবে আমরা কিছু জিনিস যখন রাখি সেসব সম্বন্ধে যখন ফর্মালি আমরা এগুলো এইভাবে আমরা জিজ্ঞাসা করি এই কোয়েশ্চেন্সগুলো হাউ হ্যাভ ইউ বিন কিপিং আই ট্রাস্ট দ্যাট এভরিথিং ইজ ওয়েল আই ট্রাস্ট আই বিলিভ এভরিথিং দ্যাট এভরিথিং ইজ ওয়েল তো আমরা এইভাবে বলি যে সব কিছু কুশল আছে कि सब कुछ अच्छा है तो तब हम लोग हिंदी में ইংরেজিতে আমরা কিভাবে বলবো এটা আই ট্রাস্ট
that everything is well, or I believe that everything is well. তো এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা তখন তাকে বলি যে তোমার তার মানে সবকিছুই তাহলে ঠিকঠাকই আছে। সবকিছু কৌশলে আছে। তো সব কুছ अच्छा है तुम्हारा। तो पहले वाला वर्ड क्या है, हम लोग जब फॉर्मल मिलते हैं किसी से पहले क्या बोलते हैं? हेलो, हेलो बोलते हैं। तो उसके साथ तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी समय की फॉर्मल है वो तो हम लोग यूज़ करते ही है। সময় जो সময় में तुम मिलते हो किसी से, जब যখন তুমি কারোর সাথে ১ম মানে কোন সময়েতে তার সাথে দেখা হয়, সেই সময় অনুযায়ী আমরা তাকে গ্রিট করি হ্যালোর সাথে। গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন, গুড নুন, ওটা যদি ১২ টা হয় ঘড়ি অনুযায়ী, হ্যাঁ? তখন গুড নুন বলি। ১২ টায় যদি ঘড়ির কাঁটাটা থাকে, जब घड़ी का समय 12 बजा 12 बज पूरा 12 होता है तब हम लोग बोलते हैं गुड নুন। তো এরকমভাবেই আমরা গুড নাইট না, ওটা যদি রাত্রির সময় হয়, ও ওটা যদি रात में तुम किसी से बात कर रहे हो तो एंड में तुम गुड नाइट बोलते हो। तो हम लोग ऐसे ही समय के अनुसार हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट ये सब यूज़ करते हैं। तो फॉर्मल जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ग्रीटिंग्स में, वो पहला वाला है हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज़ एवरीथिंग, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग, हाउ हैव you been keeping? I trust that everything is well. তো তোমরা কিভাবে এগুলো প্র্যাকটিস করবে এই কোয়েশ্চেনস গুলো? এগুলো আমি ভার্বালি করছি কারণ এটা স্পোকেন বলে। এরপরে আ আমি আমি কিছু আরো ভিডিও করব যেখানে আমার পাওয়ার পয়েন্ট ক্যাপশনেতেই আমি পাওয়ার পয়েন্ট ইউজ করে এইগুলোকে আম এই ওয়ার্ডগুলোকে, এই সেন্টেন্সগুলোকে আম দেওয়া থাকবে। সেগুলো তোমাদের দেখতে সুবিধা হবে। তবে ভার্বালি যতটা শুনবে আমার ভিডিওটা ততই তোমাদের আরো এটা স্পোকেন তো। আর তোমরা তখন নিজেরা मिरर सामने दाঁড়িয়ে বা तुम लोग मिरर के सामने खड़े होकर ये प्रैक्टिस कर सकते हो वर्बली सुन के, जो क्वेश्चन मैं अभी बोल रही हूँ फॉर फॉर्मल ग्रीटिंग्स। तो ये ऐसे प्रैक्टिस करोगे जब किसी से मिलेगा हाउ आर यू बोलकर बोल सकते हो, क्योंकि पहले वर्ड हम लोग ये वो अच्छा है कि नहीं, ও কেমন আছেন, তো এটা আমরা তো জিজ্ঞাসাই করি সবাইকে। তোমার বন্ধুর সাথে যখন দেখা হয়, जो तुम्हारा फ्रेंड के साथ जब तुम मिलते हो और रिलेटिव और किसी के साथ हम लोग हाउ आर यू यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ हाउ आर यू। तो আমি যদিও এটা স্পোকেন इंग्लिश क्लास আমার এটা इंग्लिशेই তোমাদের एक्सप्लेन करा उचित, तुम लोगों को इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि तुम्हारा नेटिव लैंग्वेज में इतना कॉमन रहता है कि तुम डरते हो इंग्लिश से, तुमरा इंग्लिश से भय पाओ बोलते। तुम लोग का एक शर्म, एक शाइनेस होता है। तो इसलिए हम लोग मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को तुम्हारा नेटिव लैंग्वेज थोड़ा यूज़ करके इसको अच्छी तरह तुम समझ पाओ, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। তো তোমাদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছি কারণ এর সাথে তোমরা যাতে এটাকে ভালো করে বুঝে নিজেরা ইউজ করো এবং নিজেরা সর্বদাই কথা বলো বন্ধু-বান্ধবদের সাথে, বাড়ির মধ্যে ভাই-বোন, রিলেটিভ যারা আছে ধীরে, ধীরে বলতে আ শুরু করো। আম ১ম এ ভুল হতেই পারে। তোমরা এখন বিগিনার্স লার্নিং स्टेज में রইছো স্পোকেন इंग्लिश है, तो भूल होते ही पारे। तो तुम लोग का गलती हो सकता है यूज़ करने में, बट यू से, तुम लोग बोलो, তোমরা বলো। If you don't speak out, then you can't able to learn. So ১ম এ কোন ওয়ার্ডটা? হ্যালো। হ্যালো আমরা এরমভাবে জিজ্ঞাসা করি, হ্যালো ऐसे हम लोग पूछते हैं हेलो, हाउ आर यू? सो তোমরা এরমভাবে জিজ্ঞেস করবে তোমাদের বন্ধুদের। तुम लोग ऐसे ही पूछोगे तुम्हारा दोस्त लोगों को
कि रिलेटिव को कोई किसी से मिल रहे हो, हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग। तारपरे कथा बा तुम लोगों का जो भी बात आगे बढ़ने के लिए मीट कर रहे हो, तो हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज़ एवरीथिंग। तो धीरे-धीरे ये सब सेंटेंस भी उसके साथ बात करना शुरू करो। तो जिसको पूछ रहे हो वो भी तुमको आंसर देंगे। যে যাকে এই কোয়েশ্চেনস গুলো করছো তারা এই কোয়েশ্চেনস এর উত্তর দেবে। তো এইভাবে তোমাদেরও তাদের উত্তর কিভাবে আসছে তোমরাও তখন শিখে যাবে। তোমরাও যখন তোমাদের এই প্রশ্ন কেউ করবে, "হাউ আর ইউ?" তখন তোমরাও সেটা উত্তর সেইভাবে দিয়ে দেবে। তো এইভাবে যতক্ষণ না বলবে, তো एटलीस्ट বাড়িতে মিররের সামনে, আয়নার সামনে तुम लोग प्रैक्टिस करो। तो मिरर सामने दाঁড়িয়ে प्रैक्टिस करो। शर्म की बात कुछ भी नहीं है, शाइनेस नहीं है। पहले गलती होगा, ভুল হতে পারে ১ম এ, কিন্তু তোমরা শিখে যাবে। দেখবে খুব অল্প দিনের মধ্যেই এই জড়তাটা চলে যাবে। तुम लोगों का जो शाइनेस है, अ, वो क्लमज़ीनेस है, दिक्कत है होता है बोलने में, शर्म लगता है, तो ये सब धीरे-धीरे नहीं होगा। तो ऐसे प्रैक्टिस जब करोगे बोल्डली, तो पहले वर्ड हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू डूइंग? हाउ इज़ एवरीथिंग? हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग? हाउ हैव you been keeping? I trust that everything is well. Now हम हम लोग कौन-सा फॉर्मल में अभी सीखेंगे? अभी फॉर्मल में सीखेंगे टाइम। जब কোন-সা টাইমে, কোন সময় কারো সাথে যখন কথা বলছো, তখন কিভাবে তাকে উইশ করবে, গ্রিট করবে। তো গুড মর্নিং, মর্নিং হলে গুড আফটারনুন, আম গুড ইভনিং, দেন হাউ ডু ইউ ডু? দেন হাউ আর ইউ? এসব আমরা ইউজ করব যখন কারোর সাথে উম আ আমরা ফরমালি মিট করছি। তখন বলব গুড মর্নিং, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेरी वेल, थैंक यू। तो जो भी कोई कुछ आपके साथ डील हो रहा है, कोई कुछ दे रहा है कि ले रहे हैं, जो भी मीन्स तुम जब किसी से साथ दोस्त के साथ, रिलेटिव के साथ मिलते हो, তোমরা যখন কোনো ফ্রেন্ড বা রিলেটিভ বা ভাই বোনদের সাথে মিট করো তখন ভেরি ওয়েল, থ্যাংক ইউ, এরম বলে সে হয়তো কিছু দিল তোমাকে। তো এরম বলে সেই কথাটা শেষ করতে পারো। तुम लोग ऐसे बात को एंड कर सकते हो बाय सेइंग थैंक यू, वेरी वेल, लाइक दैट वे। और समय जब कौन-सा समय में बात कर रहे हो, वो ध्यान होना चाहिए। मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो तुमको समझ में आ जाएगा, बिगिनर्स हो सो व्हाट। तुम दोपहर का कितने टाइम से होता है और रात कौन-सा इवनिंग टाइम इन एक्चुअली सनसेट के बाद ही इवनिंग शुरू हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रीजियन কোন প্লেস, কোন জায়গা মে, কোন জায়গায় অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ইভনিং আমরা বলি। সব জায়গায় সূর্য উদয় আর সূর্য অ অস্ত এটা তো এক হয় না সময়টা। আ ইন্ডিয়াতে একরকম, অন্য দেশে আরেক রকম। ইন্ডিয়ার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় আ বিভিন্ন টাইমেই সূর্য অস্ত যায়, উদয় হয়। তো সেটা আমাদের দেখে করতে হবে। তোমরা কোন রিজিয়নে আছো, কোন জায়গায় তোমরা বাস করছো, कहाँ तुम लोग रह रहे हो, उसके हिसाब से तुम लोगों का इवनिंग होगा अकॉर्डिंग टू सनसेट, एंड देन नाइट यू नो इट। Almost after 7 p.m. 8, and we call it night. And after 12 we call it afternoon, and at sharp 12 we call good noon, and good morning start from after midnight. After 12 midnight, midnight sharp 12 is midnight we call it, and after 12 we call it am, that is morning time. Then we wish as good morning, though we sleep at that time, but when after sunrise we always meet with people in the school, wherever we go, and all interact with our how family members, friends and all. So then we wish.
तो हम लोग यूज़ करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो अकॉर्डिंग टू टाइम, तो तुम लोगों का समय देखकर इसको यूज़ करना है। तो তো তোমরা সময় দেখে এটা ইউজ করবে ফর্মাল গ্রিটিংসকে টাইম গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, গুড আফটারনুন, গুড নাইট অ্যান্ড হাউ ডু ইউ ডু, হাউ আর ইউ, এগুলো बिगिनिंग में हेलो बोले এগুলো शुरू করবে। पहले हेलो बोलोगे, उसके बाद हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, ऐसे हाउ एवरीथिंग इज गोइंग मीन्स और भी बात करना चाहते हो तो ऐसे आगे बढ़ोगे उसके साथ। नेक्स्ट हम लोग जो आज देखेंगे इनफॉर्मल। सो 3 টাইপ होता है, 3 রকমের গ্রিটিংস হয়। একটা হচ্ছে ফর্মাল, একটা ইনফর্মাল, একটা ক্যাজুয়াল। ইনফর্মাল গ্রিটিংসে আমরা কি দেখব? আমরা ইনফর্মাল গ্রিটিংসে দেখব কি ওখানে হাই ইউজ হয়। যেরকম ফর্মালিতে আমাদের হয় হ্যালো, ওখানে হাই নয়, হাইটা একটু ওর থেকে বিলো স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যায় এই ওয়ার্ডটা। সেই জন্য ইনফর্মাল, যার সাথে আমাদের ফর্মাল রিলেশন নয়, মিন্স খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড, খুব জানা পেহচানওয়ালা হতা হে, তো তোমাদের বন্ধু বান্ধব বা ফ্যামিলির মধ্যে যারা খুব যাদের তুমি চেনো তাদের সাথে তুমি হাই বলতে পারো। কিন্তু তুমি এটা হাই বলে অন্য কাউকে যাকে তুমি দেখোনি, পরিচয় নেই সেরমভাবে, তাকে তুমি হঠাৎ করে হাই বলতে পারো না। হ্যাঁ? তো সেটা সেখানে তোমাকে ফর্মাল কথাবার্তা ইউজ করতে হবে। কোথাও একটা গেলে, কোনো অফিসে গেলে কিছু জিজ্ঞেস করছে, হ্যালো বলে তাকে জিজ্ঞেস করবে। হ্যাঁ? কোনো রিসেপশনে গেলে হ্যালো বলে জিজ্ঞেস করবে। এক্সকিউজ মি, হ্যালো বলে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো। কিন্তু তুমি যখন তোমার বন্ধু-বান্ধব, নিজের বা পরিবারের লোকেদের সাথে হাই বলতে পারো, সেখানে কিন্তু হাইটা হ্যালোর থেকে থোড়া একটু কম স্ট্যান্ডার্ড ওই ওয়ার্ডটার। তো সেটা আমরা তখন यूज़ करी। तो हम लोग हाई यूज़ करते हैं जब जिसको पहचानते हैं, जिसको फैमिली, फ्रेंड और ये सब इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। बट कहीं पर तुम गए और वहाँ रिसेप्शन में ऐसे हाय बोलकर तुम बात नहीं कर पाओगे, वहाँ पर हेलो बोलना ही है। एक्सक्यूज़ मी बोल के हेलो बोलना है। इफ दैट पर्सन इज़ बिज़ी, उसको एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए। কেউ যদি ব্যস্ত থাকে তারপরে তার সাথে কথা শুরু করতে হয়। আর যদি ব্যস্ত না থাকে স্ট্রেট আপে তখন হ্যালো বলে কথা বলতে হয়। যদি তাকে তুমি চেনো না, पहचानते नहीं हो, तो उसको ऐसे डायरेक्टली हेलो बोलना है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? পরের যে আমরা ইউজ করব কি? হোয়াট ইজ আপ? গুড টু সি ইউ। হাই, হোয়াট ইজ আপ? সো কি এরপরে? তারপরে গুড টু সি ইউ, তোমাকে দেখে আমার ভালো লাগলো। হাউ আর থিংস উইথ ইউ? তোমার সাথে সবকিছু কেমন চলছে? এগুলো আমরা জিজ্ঞেস করতেই পারি ইনফর্মালি। হাউ ইজ ইট ইজ গোয়িং? সো সবকিছু কেমন চলছে? এই শব্দগুলো ইউজ করো। হাউ ইজ লাইফ বিং ट्रीटिंग यू? कैसे तुम्हारा जीवन कैसे जीवन के साथ तुम चल रहे हो? कैसे तुम्हारा जीवन অতিবাহিত हो रहा है? तुम्हारा জীবন कैसे चल रहा है? তো তোমার জীবন কেমন চলছে? তো এইভাবে আমরা জিজ্ঞেস করতেই পারি। হাউ ইজ লাইফ বিন ট্রিটিং ইউ? হ্যাঁ? তো তোমার সঙ্গে তোমার জীবন কেমন চলছে? তো এইভাবে আমরা ইনফর্মাল ইউজ করব। হাই, হোয়াটস ইজ আপ? গুড টু সি ইউ। হাউ আর থিংস উইথ ইউ? হাউ ইজ ইট গোয়িং? হাউ ইজ লাইফ বিং ট্রিটিং ইউ? अब अबर আমি रिपीट করছি, আবার আমি বলছি, फिर से मैं बोल रही हूँ। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स कैसे? हाय, व्हाट इज अप? गुड टू सी यू। हाउ आर थिंग्स with you? How is it going? How is life been treating you? তো হ্যালো ইনফর্মাল গ্রিটিংসও বলা যেতে পারে, কিন্তু অ্যাভয়েড করাটাই ভালো। হাইটাই আমরা ইউজ করি, হ্যালো করলেও করতে পারি, আজকাল অ্যাকসেপ্ট। কিন্তু প্রিভিয়াসলি এটা হতো না, খুব রিজিড ছিল এই ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু এখন ইনফর্মালেও হ্যালো ইউজ হয়ে আসছে।
তো হ্যালো, হাই এগুলো অ্যাকসেপ্ট করা হয়ে গেছে। যেমন শ্যাল উইল আমরা পড়েছি না? শ্যাল উইল এখন আই উই এর সাথে ১ম এ কি ছিল? উইল আ আই উই এর সাথে ফার্স্ট পারসন এর সাথে ইউজ হতো না। তো তেমনই তো সেরকমই এখানেও এখন ওই হ্যালো হাইটা ইনফরমালি ইউজ হয়েছে। ১ম ওই জন্য ১ম বললাম যে আ আলাদা করে বললাম। এখন ইন জেনারেল ভাবে বলে দিচ্ছি কি এখন তো মডার্ন ইংলিশ হয়ে যাচ্ছে আরো আপডেট হচ্ছে ইংলিশ। তো সেখানে আমাদের এই হ্যালো হাই एक्सेप्ट तो अब क्या हो रहा है अब अपडेट हो रहा है इंग्लिश तो अभी हम लोग हेलो जैसे हेल विल की तरह जैसे व्हील भी अभी आई वी के साथ एक्सेप्ट हो रहा है, उसी तरह हम लोग इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में हेलो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं विथ हाई। हाय, हेलो बोथ एक्सेप्टेबल। तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग से हम लोग क्या यूज़ करते हैं कौन-सा सेंटेंस? हाउ आर यू डूइंग? हाउ हैव यू बीन? हाउ आर थिंग्स गोइंग? सो तुम्हारा सब कुछ कैसे चल रहा है? तुम कैसे हो? तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं? ये सब पूछते हैं हम लोग। तो ऐसे हम लोग हाउ आर यू डूइंग, हाउ हैव यू बीन, हाउ आर थिंग्स गोइंग। सो पहले भी मैं कुछ और भी सेंटेंस बोला जो सेंटेंस इधर इधर है। हाय, व्हाट इज अप, गुड टू सी यू, हाउ आर थिंग्स, हाउ इज इट गोइंग। सो इनफॉर्मल फॉर्मल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब तुम बात करते हो तब वो सेंटेंस तो आ ही रहा जो तुम यूज़ कर रहे हो फॉर्मल में और इनफॉर्मल में वो आ ही जाता है। তো তোমরা যখন ইউজ করো ফরমাল ইনফরমাল কিছু সেন্টেন্স এসেই যায় ফরমাল ইনফরমাল বোথ একই হয়। তো সেখানে অত আলাদা করার কিছু নেই। তো हाय, फाइन, थैंक यू, ग्रेट, थैंक्स। सो एंड में हम लोग बात करके ये सब बोलते हैं और फाइन, थैंक यू। सो अकॉर्डिंग तुम जैसे ही बात कर रहे हो, किस तरह बात उसके साथ बात कर रहे हो, तो उसी तरह तुम वर्ड यूज़ करोगे। कोई कुछ दे रहे हैं तो एंड में थैंक्स बोलोगे एंड फाइन, थैंक यू मीन्स जो भी बात की है उससे तुम्हारा अच्छा लगा तो इसलिए फाइन, थैंक यू ऐसे बोल सकते हो। ग्रेट कुछ अच्छा न्यूज़ हो बोला तो ग्रेट ये सब यूज़ कर सकते हो। उसका कुछ ऐसे ही कुछ मिला है वैल्यूएबल्स हो जो भी चीज़ हो ऐसे कुछ सर्टिफिकेट भी मिला है तो तुम ग्रेट भी बोल सकते हो। तो ये सब वर्ड तुम लोग ग्रीटिंग्स में हम लोग यूज़ करते हैं। তো আমরা এই গ্রেট, फाइन, थैंक्स एंड थैंक यू, थैंक्स ये सब यूज़ हम लोग इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं और ফরমাল में অনলি থ্যাংক ইউই হয়। কারণ ওখানে তো আমরা তাকে খুব একটা চিনি না অত ক্লোজ হয়ে আমরা খুব আ বলতে পারি না অনেক কিছু। लास्ट थैंक यू फॉर्मली हम लोग बोले दी। हम लोग जो फॉर्मल मीटिंग होता है किसी के साथ जो जिसको ज़्यादा पहचानते नहीं हो लास्ट में हम लोग थैंक यू बोलते हैं। जिसके साथ पहचान रहते हैं वहाँ थैंक, ग्रेट, फाइन जो भी चीज़ अच्छा चीज़ हम लोग उससे पास से जानकारी होता है हम लोग तब एंड में ऐसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मल क्लोजिंग। इट हैज़ बीन ए प्लेजर गुड बाय। कैसे तुम लोग फॉर्मल ग्रीटिंग्स में क्लोज करोगे तुम्हारा बातचीत को कि তোমরা কি করে ফরমাল মিটিংয়ে কারোর সাথে মিট করেছো, কি করে সেই কথাবার্তাটা একটা শেষ আছে তো, শেষ কি করে করবে? গুড বাই বলবে, "ইট হ্যাজ বিন এ প্লেজার।" তো তোমার ওর সাথে কথা বলে তোমার ভালো লেগেছে। তো "ইট হ্যাজ বিন এ প্লেজার, গুড বাই। থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম, গুড বাই।" সো থ্যাংক ইউ ফর মানে ও যে ওর ভ্যালুয়েবল টাইম তোমার সাথে দিয়ে কথা বলল, তো তার জন্য তুমি ওকে থ্যাংকস জানাবে এবং গুড বাই বলবে। ফরমাল, তাকে চেনো না। এবং তার কাছে তোমার কিছু जानते इच्छुक है, तुम्हारा कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन जानना है किसी से के साथ तो तब तुम बोलोगे कि इट हैज़ बीन ए प्लेजर ও জেনে তোমার খুব ভালো লেগেছে तुमको अच्छा लगा और लास्ट में बोलोगे थैंक यू फॉर योर टाइम गुड बाय। तो ऐसे बोलकर एंड करना है फॉर्मल बात। इनफॉर्मल क्लोजिंग कैसे होगा? आई हैव टू गो नाउ। তুমি स्ट्रेट अवे बोल सकते हो क्योंकि तुम्हारा वो क्लोज है, तुम्हारा नोन पीपल है, तुम्हारा अपना फ्रेंड है, तो आई हैव टू गो नाउ, बाय बोलकर चले सकते हो। आई विल सी यू लेटर, बाद में देखेंगे।
এখন अभी সময় নেই है, এখন সময় নেই, তুমি তাকে বললে যে आई विल सी यू लेटर, আমি তোমার সঙ্গে পরে দেখা করব। लेटर अराउंड कुछ टाइम दे देना और ऐसे बाय बोलकर तुम जा सकते हो। हैव अ नाइस डे, बाय। सो ওকে ভালো দিন উইশ করে चले गए लास्ट बोले इनफॉर्मली। तो इनफॉर्मली हम लोग लास्ट में हैव अ नाइस डे बाय बोलकर भी एंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कैसे तुम लोग बातचीत कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं एंड कैसे करोगे। इनफॉर्मल में आई हैव टू गो नाउ, बाय, आई विल सी यू लेटर अराउंड टाइम भी दे सकते हो, बाय, देन हैव अ नाइस डे, बाय। तो इसी तरह तुम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल में कर सकते हो। तो हम लोग इतना सीखा आज कि फॉर्मल इनफॉर्मल में कैसे ग्रीट करोगे। और टाइम बेस्ड है कौन सा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सो यूज्ड अंटिल नून मीन्स गुड मॉर्निंग बिफोर 12 means before around noon, and good afternoon after noon means used from noon until sunset, and sunset के बाद इवनिंग शुरू हो जाता है। एंड इट इज़ प्लेजर टू मीट यू, इंट्रोडक्शन जब करोगे किसी से, इट इज़ नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू बोलकर भी शुरू कर सकते हो। हेलो, प्लीज टू मीट यू, नाइस टू सी यू, प्लेजर टू मीट यू, एगुलो ये सब एगुलो की फॉर्मल, ये सब फॉर्मल ग्रीटिंग्स है। ये भी फॉर्मल यूज़ कर हेलो बोलकर उसका नाम जो भी है, हेलो मिस्टर स्मिथ, हेलो मिस्टर जॉन, ऐसे बोलकर तुम लोग शुरू करते हो बातचीत। तो गुड मॉर्निंग, हाउ हाउ आर यू टुडे, तुम कैसे हो आज, ऐसे बोलकर हम लोग बात करते करते हैं ना। तो ऐसे तुम लोग हेलो मिस्टर एक्स, आई एम वेरी वेल थैंक यू। सो हेलो मिस्टर एक्स बोले आई एम वेरी वेल। तो वो बोल रहे हैं तुमको, जो भी एक्स जिसके साथ तुम बात कर रहे हो, তুমি কারোর সাথে কথা বলছো, তখন তুমি তোমাকে বলবে আই এম ভেরি ওয়েল থ্যাংক ইউ। সো সে তার উত্তর দিল। তো এই উত্তরগুলো পেয়েও তুমি অনেক কিছু দেখবে স্পোকেনে শিখে যেতে পারবে। তো এইভাবেই আমরা আ আ আমাদের জড়তাটাকে কাটাতে হবে। हम लोग जो शाई होता है ना, इसको दिक्कत होता है बोलने में, इसको तुमको अवॉइड करना है, इग्नोर करके बोल्डली तुमको स्पीक आउट करना है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर फर्स्ट, और विद इन द फैमिली मेंबर्स, ब्रदर सिस्टर है तो उनके साथ भी बात करो। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हो। कैजुअल, कैजुअल ग्रीटिंग होता है, कैजुअल इनफॉर्मल ग्रीटिंग, कैजुअल भी इनफॉर्मल में ही होता है। ক্যাজুয়াল গ্রিটিং যেটা হয় সেটা ইনফর্মালের মধ্যেই ইনক্লুড করা হয়। হে, দেয়ার, হোয়াটসঅ্যাপ, हाउ इट इज़ गोइंग, व्हाट्स हैपनिंग। सो ये सब चीज़ हम लोग बात में कैजुअल, जब किसी के साथ कैजुअली बात करते हैं, ये सब यूज़ करते हैं। इसको अलग से हम लोग सेग्रीगेट ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी इनफॉर्मल में इंक्लूड होता है। कैजुअल का जो भी सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं। सो आई एंड टुडे हियर, एंड आज ही नेक्स्ट सेशन में और भी नेक्स्ट जो स्टेप इसका है स्पोकन इंग्लिश का बिगिनर्स का लेकर तुम लोगों के पास आऊँगी। और अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस करना, बार बार मेरा ये सुनना, कैसे मैं बोले किस तरह तुमको आगे बढ़ना है। फर्स्ट ग्रीटिंग्स लेकर, फर्स्ट ग्रीटिंग्स, देन तो बातचीत होगा, क्या वर्ड यूज़ करना है, क्या सेंटेंस यूज़ करना है, कौन कौन डेली वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा, उसके ऊपर हम ट्रेस करके तुम लोगों को बताएंगे। तो तुम्हारे আরও ওয়ার্ড কী ওয়ার্ড তোমরা ইউজ করো স্পোকেন ইংলিশে, ডেলিতে ইউজ করবে, করে তোমরা যাতে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারো, সেই নিয়ে আমি আবার আমার নেক্সট ভিডিও আসবে। আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তোমরা লাইক করো, শেয়ার করো, অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো, যাতে তোমাদের কাছে নেক্সট আমার ভিডিওটা পৌঁছে যায়।